सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस. चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल. डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इनहेंस हो सके. राइट नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मस्ट बी कमिंग टू माइंड इज दैट इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम from Hindi medium to English medium despite having studied from the first class to the intermediate or even to the graduation throughout in Hindi medium? Is it still really possible at this stage to change the medium from Hindi medium to English medium? Yes, it is possible. Why it is not possible, right? It is very easy also. And now the next yet very important question must be coming to your mind is that if it is possible, then how it is possible, right? You must be asking a question within yourself that okay, I really want to change the medium, but what are the ways, what are the methodologies, what are the technologies, right? How we can change, right? So basically the two simple kind of advice would be that you should start reading things into English, right? So what are those things? Like these are the national dailies, the Indian Express, the Hindu newspaper, right? So you should start reading them. The moment you start reading them, right, so what will happen that your mind will start getting wired in such a way that it will start accepting English, it will start reflecting over English, right? So here suppose if I read about New Delhi and New Tel Aviv, right? So what is the meaning of this? So whenever we read any editorial, so the first thing that we should do is that we should read the heading. So once we are reading the heading, we just get an idea that what this particular editorial is going to talk to us, right? Or what author wants to convey to the reader, right? So here New Delhi and New Tel Aviv, so it means this is the capital of Israel, right? Tel Aviv is the capital of Israel and New Delhi is the capital of India. So here we can gog or we can easily guess that this particular editorial is going to be talking about something which is related very closely with the New Delhi and the Tel Aviv, or that is India and Israel, right? So we can, in a nutshell or in a UPSC kind of a way, we can say that this is going to be the relationship between the New Delhi and Tel Aviv, right? Now the second thing is that we should read this particular kind of mark, right? So here Prime Minister Modi's political ownership of relationship with Israel is guided by changed geopolitics and India's interest, right? So ये पढ़ने के बाद this line, when we are able to understand, at least we'll be having a little more idea that what this particular editorial is going to be talking about even deeper, right? So here we are going to talk about the changed geopolitics. So geo means earth and politics means what? राजनीति. तो जहां पर भी सबसे ज्यादा राजनीति इस वक्त कहां पर हो रही है? इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में, राइट? सो जियो पॉलिटिक्स कहां पर बदली हुई है? इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में, राइट? उसके बारे में और इंडिया का इंटरेस्ट क्या है इस जियो पॉलिटिक्स के अंदर, राइट? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो पॉलिटिकल ओनरशिप है, मतलब वो जो खुद से जो बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप विद इजराइल इज गाइडेड बाय, कि जो अब इजराइल के साथ जो इंडिया की रिलेशनशिप होगी वो किस तरीके से जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, वो डिपेंड करता है कि जियो पॉलिटिक्स कैसी है और इंडिया के क्या इंटरेस्ट हैं, राइट? इस हिसाब से तो अब हमें पता चल गया, अच्छा इस तरीके से कुछ बात करनी है, राइट? सो यू रीड इट एंड आई विल बी रीडिंग इट फॉर यू आल्सो सो दैट you can understand, right? So it was not surprising that Hamas attack on Israel over the weekend quickly acquired a domestic political dimension in India, right? जो हमास ने अटैक अभी किया है इजराइल के ऊपर, उसने बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर क्या हुआ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी अपने अपने रिएक्शन देना स्टार्ट किए. तो बेसिकली इसमें बीजेपी का क्या स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू है और जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है, सबसे बड़ी इंडिया की जो इस वक्त की ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका क्या व्यू पॉइंट है, राइट? सो ओवर द लास्ट फ्यू डेज दिस न्यूज़पेपर हैज रिपोर्टेड ऑन द कांग्रेस पार्टीज डिफिकल्टी, मतलब कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत हो रही है रिएक्ट करने में, रिएक्टिंग टू द टेरर अटैक ऑन इजराइल. जो अटैक इजराइल पे हुआ है, टेरर अटैक इजराइल पे हुआ है, उस पर कांग्रेस पार्टी क्यों अपना रिएक्शन नहीं दे पा रही है, क्या दिक्कत है उसको? सो इफ द मेन ऑपोजिशन पार्टी हैज फ्लिप्ड एंड फ्लॉप्ड, द रूलिंग बीजेपी हैज बीन अनएम्बिगुअस. तो अनएम्बिगुअस मतलब होता है स्पष्ट तरीके से, बिल्कुल क्लियरली, वेरी क्लियरली, इन कंडेमिंग द अटैक एंड एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी मतलब एक उनको सेकेंड करना, उनको एक अपना समर्थन देना, सॉलिडारिटी, ठीक है? तो विद इजराइल, तो जो हमारी ये पार्टी कांग्रेस पार्टी है, ये अभी भी इसको जो है दिक्कत हो रही, समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहिए हमें, ठीक है? इट इज नॉट क्लियर विद इट्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट हाउ टू रिएक्ट ऑन द रीसेंट अटैक ऑन इजराइल बाय द हमास दैट इज बेस्ड इन द पैलेस्टीन, राइट? एंड बीजेपी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस अटैक को कंडेम किया है, ठीक है ना, उसकी आलोचना की है, ठीक है, और एक्सप्रेस किया है सॉलिडारिटी, भाईचारा. उन्होंने बताया कि हाँ हम आपके साथ हैं, ठीक है ना, इजराइल के साथ हैं. अब इसकी वजह से क्या हुआ, दैट लेंट, तो ये क्या है, लेंट का सेकंड फॉर्म है लेंट. तो क्या दिया इसने, ये जो बीजेपी ने एक तरीके से एक्सप्रेस की है सॉलिडारिटी और सेकंड किया है इजराइल के थॉट को, तो क्या है कि इसकी वजह से एक रिंकल्स टू द पॉलिटिकल स्पैरिंग. सो पॉलिटिकल स्पैरिंग मतलब क्या है, जो जैसे मान लीजिए बीजेपी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है और जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उसका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, तो दोनों के बीच जो हल्की फुल्की लड़ाई होती है, नोकझोंक होती है, राइट? वो जो एक वर्बल
जो स्पैट होती है बेसिकली, ठीक है ना, उसको बिटवीन द टू पार्टीज ऑन द कमिटमेंट टू फाइट टेरर। तो अब इसमें ये क्वेश्चन आ गया, अब ये एडिटोरियल सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की बात करेगा कि बीजेपी का क्या स्टैंड है जो भी टेरर अटैक्स होते हैं या फाइट करने में, ठीक है ना, जो भी मतलब जिस भी तरीके से बीजेपी अगर फाइट करना चाहती है टेररिज्म को, तो उस पर स्टैंड कांग्रेस का क्या रहता है और बीजेपी का क्या रहता है, तो वो इसमें हम बात करेंगे, राइट। द पॉलिटिकल डायनेमिक बिटवीन इंडिया एंड द मिडिल ईस्ट कट्स डीपर। अब जो पॉलिटिकल डायनेमिक है, ठीक है ना, इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच में, अब वो और ज्यादा गहरे हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? जियो पॉलिटिक्स ऑफ द मिडिल ईस्ट इन द 20th सेंचुरी इनएविटेबली इंटरसेक्टेड विद द इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ द साउथ एशिया। ठीक है, तो जो जियो पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे जियो मतलब क्या होता है? अर्थ, और पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है? राजनीति। तो अर्थ पे आजकल ऐसा सबसे ज्यादा ऐसा क्षेत्र कौन सा है जहां पर ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है? तो वो है इजराइल एंड पैलेस्टीन, ठीक है ना। तो जियो पॉलिटिक्स इन द मिडिल ईस्ट, अब ये दोनों कंट्री कहाँ आती है? मिडिल ईस्ट में आती है। सो इन द 20th सेंचुरी इनएविटेबली मतलब क्या है? समथिंग विल डेफिनेटली हैपन। Like suppose if you change your medium, your chances of getting into the civil service examination will inevitably increase. पक्का मतलब आपके chances तो जरूर increase होंगे, right? Success की guarantee नहीं है, but yes, your chances of getting into the civil service examination will enhance manifold, right? So, excuse me, on the 20th century inevitably intersected with the international relations of South Asia. अब जब 20th century में क्या हुआ कि जो है इंडिया और मिडिल ईस्ट के, या साउथ एशिया कह सकते हैं आप, साउथ एशिया में इंडिया भी आता है, राइट। तो इंडिया और जो मिडिल ईस्ट है, या साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के रिलेशनशिप थोड़ा सा क्लोज हुए, थोड़ा सा क्लोजर आए, ठीक है ना। एंड एक्वायर्ड मोर इंटेंसिव कैरेक्टर आफ्टर पार्टीशन। जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ, उसके बाद ये और ज़्यादा इंटेंस हुए, और ज़्यादा तेज और ज़्यादा तेज़ी से करीब आए, ठीक है ना, इंडिया और मिडिल ईस्ट, या आप साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट को बोल सकते हैं। However, the nature of that interaction has been changing in the 21st century. अब ये तो 20th century की बात थी। अभी आज के टाइम में 21st century में किस तरीके से इजराइल और इंडिया, या आप साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के रिलेशंस को देखते हैं, वो कैसे डिपेंड करता है, वो काफ़ी मतलब उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है अभी तक, ठीक है। एज द रीजन इवॉल्व इन recent decades, सो हैज़ इंडियन थिंकिंग। तो जो रीजन, जो एक क्षेत्र है मिडिल ईस्ट जो है, जैसे जैसे उसका विकास हुआ है, उसी तरीके से इंडियन थिंकिंग का भी विकास हुआ है, ठीक है ना। बट द चेंजेस इन इंडियन पॉलिसी ऑन द मिडिल ईस्ट हैव बीन मोर कॉन्सिक्वेंशियल ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 5 ब्रॉड चेंजेस स्टैंड आउट। अब बताया जा रहा है कि जो इंडिया की जो पॉलिसी रही है मिडिल ईस्ट पे, ठीक है ना, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से बहुत ही निर्णायक रूप से हमें देखने को मिली है। अब वो कैसे निर्णायक रूप से देखने को मिली, उसके 5 कारण बताए गए, कि 5 ऐसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए हैं तब से साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच में, स्पेशली इंडिया और मिडिल ईस्ट के रिलेशंस कैसे अफेक्ट हुए हैं पॉजिटिवली, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, was the Prime Minister's decision to bring India's relationship with Israel out of the closet and signal full political ownership। ठीक है, जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तब से क्लियरली उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, क्लियरली आइडेंटिफाई किया, और ओपनली उन्होंने बोला कि हमारा इजराइल के साथ ऐसा रिलेशनशिप है, ठीक है ना, विदाउट हाइडिंग एनीथिंग। ओके, सो टू बी श्योर इट वाज कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हु एंडेड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम इजराइल। अब ये भी एक बात यहाँ पे निश्चित है, टू बी श्योर, ये भी एक बात यहाँ पे निश्चित है, पक्की है, कि जो कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी थे, उन्होंने एंड की थी कौन सी पॉलिसी की, कि कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम इजराइल, की इजराइल से दूर रहना। तो ऐसी जो पॉलिसी उनसे पहले जो फॉलो की जाती थी उसको उन्होंने एंड कर दिया था। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन था, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट आती है पीवी नरसिम्हा राव की, फॉलोड थ्रू बाय एस्टैब्लिशिंग फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल। तो पीवी नरसिम्हा राव की जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो स्टैब्लिश किए इजराइल के साथ, ठीक है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आती है, उसमें क्या किया, बिल्ट ऑन द फाउंडेशन, मीन्स जो यहाँ पर राजीव गांधी जी ने किया, फिर जो पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया, उसके बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन दोनों पिलर्स के ऊपर क्या बिल्ड किया और मजबूत किया इसको, एंड एंडेड दिल्लीज रिलेक्टेंस टू होस्ट द इजरायली प्राइम मिनिस्टर। तो अभी तक क्या होता था कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे उनको हम लोग होस्ट नहीं करना चाहते थे, बुलाना नहीं चाहते थे, अपने कंट्री में इन्वाइट नहीं करना चाहते थे। बट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस चीज को भी खत्म किया, राइट। बट द यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए मतलब क्या, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब कांग्रेस पार्टी मेनली और बाकी जो इसके साथ के जो इसके अलायंस पार्टनर्स हैं, तो जब उसकी गवर्नमेंट थी, अंडर प्रेशर फ्रॉम द लेफ्ट एंड कांग्रेस कंफ्यूजन ओवर द मिडिल ईस्ट वेंट बैक टू पायस पोस्चरिंग एंड ड्रॉइंग द व्हील ओवर डीपनिंग सिक्योरिटी टाइज। बट जब यूपीए की गवर्नमेंट आई तो उसके ऊपर एक लेफ्ट का प्रेशर था, और ऊपर से कांग्रेस इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज थी, बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट के क्वेश्चन को लेकर के कंफ्यूज थी कि क्या हमारा एक तरीके से व्यू पॉइंट होना चाहिए।
तो उसने क्या किया कि पायस पॉस्चरिंग मतलब एक तरीके से रिलीजियस तरीके का जो है उन्होंने स्टैंड लिया, ठीक है ना। ड्रॉइंग द व्हील, तो व्हील मतलब क्या होता है, जैसे घूंघट या मतलब आप मान लो कर्टन सामने कर दो, तो ड्रॉइंग द व्हील ओवर डीपनिंग सिक्योरिटी टाइज, तो उन्होंने जो है सिक्योरिटी टाइज हमारे और मजबूत होने चाहिए, उनको उनको उन्होंने रोक दिया एक हिसाब से, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब क्या हुआ, अब नरेंद्र मोदी जी आते हैं। सो मोदी डिस्कार्डेड दिल्लीज ट्रेडिशनल inhibitions on acknowledging the growing convergence of interest between India and Israel. He also became the first Indian Prime Minister to visit Israel. जब से नरेंद्र मोदी जी हैं तब से उन्होंने जो भी मतलब पारंपरिक तरीके से जो भी रोक टोक थी कि नहीं हम उनको यहाँ पे होस्ट नहीं करेंगे या हम ओपनली बोलेंगे नहीं कि हमारा इंडिया इसराइल के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और हम बहुत सारा ट्रेड या टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना, उसके बीच में ट्रेड करेंगे। तो मोदी जी ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से और उन्होंने एक्नॉलेज किया, माना उन्होंने कि हाँ ग्रोइंग कन्वर्जन मतलब हम दोनों के इंटरेस्ट बहुत ही मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड ही ऑल्सो और जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इजराइल को विजिट किया था। अब सेकंड पॉइंट क्या, सेकंड पिलर क्या है, द एनडीए गवर्नमेंट हैज सॉट टू अलाइन इंडियाज पोजीशन क्लोजर टू ग्राउंड रियलिटीज। जो एनडीए गवर्नमेंट है मींस मोदी गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया, अलाइन मतलब साथ हो गए इंडिया की पोजीशन को लेकर के कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है इसराइल में, तो उसके हिसाब से उन्होंने अपने रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया। वाइल कांग्रेस कंटिन्यूज टू बिलीव दैट दिल्ली मस्ट बियर और प्रिटेंड टू द क्रॉस ऑफ द पैलेस्टीनियन कॉज, ठीक है, बट जबकि कांग्रेस पार्टी क्या है, वो हमेशा इस चीज को दिमाग में रखती है कि पैलेस्टीनियन कॉज को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। The NDA government has come to terms with the fact that several Arab countries have begun to make their peace with Israel without preconditions. तो अब एनडीए गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि कांग्रेस बोलती है कि आप ऐसे क्वेश्चन आप देखो कि मतलब पैलेस्टीनियन कॉज है उसको भी ध्यान में रखो, बट एनडीए गवर्नमेंट का क्या कहना है, एनडीए गवर्नमेंट का ये कहना है मोदी गवर्नमेंट का कि जितनी भी अरब कंट्रीज हैं वो भी अब इसराइल के साथ जो है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रही हैं कोई बिना शर्त के, ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट। द वायलेंट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ऑफ हमास एंड अदर फोर्सेस थ्रेटन्स नॉट ओनली इजराइल बट ऑल्सो मॉडरेट अरब स्टेट्स, राइट। अब क्या है, जो ये अटैक हुआ है वायलेंट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, तो जो ये एक तरीके से धार्मिक उन्माद जो है हमास का बहुत ज़्यादा मतलब एक रिलीजियस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को माना है और अटैक जो किया है, और अदर फोर्सेस जो हैं, ठीक है ना, पैलेस्टीनियन जो अदर फोर्सेस हैं, नॉट ओनली इजराइल, उन्होंने खतरा मतलब उत्पन्न कर दिया, पैदा कर दिया, केवल इजराइल के लिए नहीं बाकी अदर जो एक तरीके से मॉडरेट अरब स्टेट है जहां पर धार्मिकता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ठीक है ना, उनके लिए भी खतरा पैदा कर दिया है। सो दीज शेयर्ड concerns have opened space for cooperation between Israel and several Arab states. अब क्या है, ये जो शेयर्ड कंसर्न्स हैं, क्योंकि इंडिया की भी चिंता यही है कि हमको क्या करना है, फाइट करना है, किससे फाइट करना है, टेरर से फाइट करना है। तो हमास क्या है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हाँ, जो कि बेस है पैलेस्टीन में, ठीक है। तो और जो अरब स्टेट्स हैं वो भी इससे फाइट करना चाहते हैं कि हमें भी कोई टेररिज्म जैसा मुद्दा नहीं चाहिए, राइट। तो ये शेयर्ड इंटरेस्ट हो गए इंडिया के और जो मॉडरेट अरब स्टेट्स हैं, तो इसकी वजह से एक और डोर ओपन हो जाता है कि इंडिया इसराइल के साथ अपने रिलेशनशिप को और मजबूत कर सके, राइट। अब क्या, इट्स अ पिटी दैट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू's extremist politics prevented Israel from taking full advantage of the possibilities to build a new Middle East partnership with Arabs. अब क्या है कि इट्स अ पिटी, ये एक दुख की बात है, इट्स अ पिटी, ये एक दुख की बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज है, ठीक है ना, उनकी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स उनकी भी है जिसकी वजह से रोक रहे हैं, तो उसकी वजह से किसको रोक रहे हैं, वो इसराइल। तो प्रिवेंटेड मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है, इसराइल को वो रोक रहे हैं किस चीज़ से, फ्रॉम से टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द पॉसिबिलिटीज टू बिल्ड अ न्यू मिडिल ईस्ट, ठीक है ना, कि जिसके अगर इनकी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स नहीं हो, ठीक है ना, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, अगर उनकी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स ना हो तो उसकी वजह से क्या क्या फ़ायदे उनको हो सकते हैं, कि जो संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप एक नया मिडिल ईस्ट जो है डेवलप कर सकते हैं जिसमें अरब जो कंट्रीज़ हैं उनको आप साथ में पार्टनर बना के, राइट। सो द डिविजन्स विद इन पैलेस्टीन टू हैव बिकम डीप बिटवीन द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन रमल्ला एंड द हमास इन गाज़ा। अब क्या है, देखिए जो पूरा पैलेस्टीन है उसमें हमास जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ज़्यादातर कहाँ पे डोमिनेट है, गाज़ा में, ठीक है ना, और जो जो वहाँ की सरकार है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, ठीक है ना, उसको आप वहाँ की पैलेस्टीनियन मतलब एक हिसाब से गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, रामल्ला में, ठीक है। तो इनके बीच में भी डिविजन्स हैं, ठीक है, कॉन्ट्रेरी टू वाइड स्प्रेड परसेप्शन मतलब जो भी धारणाएं हैं, वाइड स्प्रेड मतलब फैली हुई हैं, और कॉन्ट्रेरी मतलब उसके विपरीत, तो जो भी धारणाएं फैली हुई उसके विपरीत द एनडीए गवर्नमेंट इज नॉट अबैंडनिंग पैलेस्टीन। जैसे कि मतलब लगता है सभी को कि इंडिया केवल इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, नहीं,
इंडिया जो है सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टीन को भी, बट किसको सपोर्ट कर रहा है? इट मेंटेन्स सॉलिड टाइज विद द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, मतलब जो पैलेस्टीन की सरकार है, ना कि जो यहाँ पर हमास इन गाजा है, ठीक है। एंड मोदी ट्रैवल टू रामल्ला इन 2018, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में, राइट, 2018 में रामल्ला को विजिट भी किया था, ठीक है। द एनडीए कंटिन्यूज टू सपोर्ट टू स्टेट सोल्यूशन टू द क्राइसिस इन इजराइल पैलेस्टीन। तो जो एनडीए गवर्नमेंट है उसका क्लियर ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि टू स्टेट सोल्यूशन को हम सेकंड करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, राइट। द मोदी गवर्नमेंट इज अनविलिंग दो टू फज the question of terror as the Congress Working Committee did on Monday, or hide behind root causes the Palestinian question to stay silent on the Hamas attack. Root cause, it might be called, is also part of Pakistan's argument that there can be no peace with India and no end to cross-border terror until the Kashmir question is resolved to its satisfaction. Same चीज यहाँ पे ये लिखी हुई है कि मोदी जी बिल्कुल क्लियर है, वो अनिच्छुक नहीं है, उन्होंने फज नहीं किया, उन्होंने किसी तरीके से छिपाया नहीं इस क्वेश्चन को कि जो है कि जो अटैक हुआ है वो गलत हुआ है और हम इजराइल के साथ हैं। अब इसके बदले में क्या है, जो अभी कांग्रेस वर्किंग जो कमेटी है उसका जो एक व्यू पॉइंट निकल के आया, उन्होंने बोला कि रूट कॉज पे ध्यान देते हैं सबसे पहले, जो पैलेस्टीनियन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसी वजह से वो जो है हमास ने जो अटैक किया है उस पर साइलेंट है कांग्रेस पार्टी। अब रूट कॉज का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जैसे पाकिस्तान हमारे पास, जैसे पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि जब तक कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं होगा तब तक ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, ऐसे बोलता पाकिस्तान, तो उससे इसको रिलेट किया गया है, राइट। अब थर्ड क्या है, द पॉलिटिकल फोकस ऑन इंडियाज करंट सॉलिडारिटी विद इजराइल masks the transformation of Delhi's ties with Arab world in the last decade. अब क्या है, लास्ट जो हमारा डिकेड रहा है जो कि मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से ही रहा है, ठीक है ना, जब से वो मोदी गवर्नमेंट आई है तब से काफ़ी अच्छा रहा है हमारा, ठीक है ना। लास्ट डिकेड जो है अरब कंट्रीज़ के साथ जो न्यू दिल्ली के जितने भी टाइज या रिलेशनशिप हैं वो अच्छे रहे हैं। फॉर ऑल इट्स रिटॉरिक, तो रिटॉरिक मतलब क्या होता है कि बोलना कुछ बट एक्चुअली में उसको ना करना, जैसे बहुत सारे वादे इलेक्शन में किए जाते हैं तो वो सारे क्या होते हैं, रिटॉरिक्स होते हैं, क्योंकि सारे वादे नहीं पूरे हो पाते, राइट। सो फॉर ऑल इट्स रिटॉरिक, द यूपीए गवर्नमेंट स्ट्रगल टू मॉडर्नाइज द रिलेशनशिप विद इजराइल कंट्रीज। तो यूपीए गवर्नमेंट जो थी उसने बहुत स्ट्रगल किया, काफ़ी संघर्ष मतलब किया कि मॉडर्नाइज कर सके वो अपने रिलेशनशिप को अरब कंट्रीज के साथ। बट अंडर एनडीए गवर्नमेंट में क्या हुआ, द यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट हैव इमर्ज्ड एज अ स्ट्रेटजिक पार्टनर। तो देखिए जो हमारी कांग्रेस रिजीम थी उसमें कुछ हो नहीं पाया खास, बट एनडीए गवर्नमेंट में देखिए यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट वो स्ट्रेटजिक पार्टनर्स बने इंडिया के, राइट। इफ इंडिया वॉज हबल्ड बाय इट्स मर्केंटलिस्ट अप्रोच, तो मर्केंटलिस्ट बेसिकली क्या होता है, जो भी मतलब हमारा एक हिसाब से ट्रेड वाला जो हमारा पर्सपेक्टिव कि कितना ट्रेड हम इससे कर सकते हैं, कितना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, जो ऑयल रिच गल्फ कंट्रीज हैं उन द पास। तो खलीजी जो कैपिटल है, खलीजी मतलब क्या होता है, अरब, खलीजी मीन्स होता है अरब कंट्रीज। तो अरब कंट्रीज जितनी भी कैपिटल है टुडे प्रोमिसेस टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आज जो इंडिया का रिलेशनशिप है अरब कंट्रीज के साथ उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है, द एनडीए गवर्नमेंट एंडेड इंडियाज ट्रेडिशनल एंटी वेस्टर्न स्टैंड्स इन द रीजन, ठीक है। तो क्या हुआ, जो एनडीए गवर्नमेंट थी उसने एंटी वेस्टर्न जो स्टैंड्स था उसको एंड कर दिया रीजन में, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जब नेहरू जी थे उन्होंने क्या किया, लिमिटिंग द एंग्लो अमेरिकन रोल इन द मिडिल ईस्ट वाज अमंग द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन डिप्लोमेसी इन द नेहरू ईयर। तो जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका क्या था कि जो एंग्लो अमेरिकन है, मतलब जो हमारा यूके है एंड यूएस है, उसका जो रोल है मिडिल ईस्ट में उसको कम करना इनका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है ना। बट मोदी ने क्या किया कि ट्रेडिशनल एंटी जो यहाँ पे वेस्टर्न स्टैंड था, मतलब जो यहाँ पे एक तरीके से था उसको उन्होंने खत्म किया, ठीक है ना, कि एंटी वेस्ट नहीं है, ठीक है। As Indian foreign policy acquired a more radical orientation in 1970s, bashing the West passed off as policy. तो bashing मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज करना। और जब 1970s के दौरान जो इंडिया का एक रेडिकल ओरिएंटेशन निकल के आया फॉरेन पॉलिसी का, उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया धीरे धीरे वेस्ट की पॉलिसीज को। सो टुडे इंडिया पार्टनर्स विद द यूएस, इजराइल एंड यूएई इन द I2U2 ग्रुपिंग। सो I2 क्या होता है, I फॉर इंडिया एंड इजराइल, एंड 2 यहाँ पे मतलब इंडिया इजराइल जो दो कंट्री हैं, और U2 क्या हो गया, U2 क्या हो गया, यूएस एंड यूके, यूएस एंड यूएई, सॉरी, राइट, यूएई एंड यूएस। तो इस ग्रुपिंग में अब इंडिया साथ में, तो देखिए अरब की दो कंट्रीज हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एक इजराइल, एक यूएई, और यूएस और इंडिया ऐसे साथ में, राइट। तो दिल्ली हैज टीम्ड अप विद द यूएस, यूरोप, Saudi Arabia and the UAE to build a corridor between the subcontinent and Europe through the Arabian Peninsula, ठीक है। तो अभी जो G20 की समिट हुई थी उसमें भी हमने देखिए एक तरीके से कॉरिडोर बनाने की बात की थी, राइट। अब तो चूंकि वो अटैक हो गया उसकी वजह से काफ़ी उसमें दिक्कतें आएंगी बनने में, बट सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडिया, राइट, तो ये लोग मिलकर के एक रास्ता बना रहे, ठीक है ना, एक वे बना रहे, एक रूट बना रहे, ठीक है ना, सब कॉन्टिनेंट मतलब जो हमारा सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से यूरोप के थ्रू, और उसके बाद हम जाएंगे अरेबियन पेनिनसुला में, राइट। इससे कि ट्रेड और बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, राइट। सो इंडियाज क्रिटिक ऑफ हमास टेरर
puts it on the same side as the West, even as Russia, China, much of the global South offer a wishy-washy two-handed reaction to the terror attack. अब ये चीज़ सिर्फ यहाँ पे लिखी है कि जो इंडिया ने जो क्रिटिसाइज किया है हमास का जो टेरर अटैक है, तो उसको तो वेस्ट ने भी क्रिटिसाइज किया है, रशिया ने भी क्रिटिसाइज किया है, चाइना ने भी क्रिटिसाइज किया, और ग्लोबल साउथ मतलब जो भी इक्वेटर के नीचे जो कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर उसको बोलते हैं ग्लोबल साउथ, उसने भी एक लगभग था मिक्सी सा थोड़ा सा जो है एक टू हैंडेड सा रिएक्शन दिया टेरर अटैक पर, राइट. सो द क्लैरिटी ऑफ इंडियाज रिस्पॉन्स अंडरलाइंस इट्स इंटरेस्ट ड्रिवन फॉरेन पॉलिसी. अब जो ये इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो ये अंडरलाइन करता है कि इंडिया का इंटरेस्ट जो है फॉरेन पॉलिसी में, उसके हिसाब से इंडिया अपने स्टेटमेंट दे रहा है, राइट. इफ द रिफ्यूजल टू कंडेम द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन was shaped by the need to protect Delhi's long-standing equities in Moscow, staunch support to Tel Aviv is rooted in the centrality of the terror question in India's security calculus. जैसे कि जो रशिया के साथ इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन है, तो इसलिए रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच में इंडिया ने उसको कंडेम नहीं किया. उसी तरीके से न्यू दिल्ली का जो एक बहुत ही स्टॉन्च मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट न्यू दिल्ली कर रही है टेल अवीव का या इजराइल का, वो मतलब किस चीज़ पर आधारित है, रूटेड या किस चीज़ पर आधारित है, बेस किस चीज़ पे है, वो सेंट्रलिटी ऑफ द टेरर क्वेश्चन इन इंडिया सिक्योरिटी का. तो जो इंडिया का जो सिक्योरिटी वाली पॉलिसी है उसमें जो टेररिज्म है वो सबसे ऊपर आता है. तो जहां पर भी टेरर अटैक होता है, इस वजह से इंडिया ने इजराइल का साथ दिया बिल्कुल कि टेरर अटैक गलत हुआ, राइट. अब फाइनली क्या है, अब यहाँ से यहाँ तक केवल सिर्फ इंडिया के बारे में बताया गया बहुत ही सिंपल वर्ड में. फाइनली द बिगेस्ट चेंज इन इंडियाज मिडिल ईस्ट पॉलिसी अंडर मोदी रिमेन्स अंडरस्टेटेड. अभी भी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कैपिटलाइज कर सकते थे अपने रेजिम में मिडिल ईस्ट के साथ जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते थे, वो भी अभी उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए. अब क्या है, इट इज द डी लिंकिंग ऑफ इंडियाज रीजनल डिप्लोमेसी फ्रॉम रिलीजन. अब सबसे पहले ये क्या हुआ है कि एक तो मतलब डी लिंक कर दिया, हटा दिया इंडिया का जो रीजनल डिप्लोमेसी हुआ करती थी उसको रिलीजन से हटा दिया है, ठीक है ना. अब क्या है, partition and Pakistan's quest for mobilizing support in the Middle East in the name of Islamic solidarity severely complicated India's engagement with the region. अब क्या है, पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान का जो केस्ट है, एक जो पाकिस्तान की जो तीव्र इच्छा होती है कि वो एक तरीके से सपोर्ट करे मिडिल ईस्ट में, ठीक है, इस्लामिक सॉलिडारिटी में. इस्लामिक सॉलिडारिटी मतलब एक इस्लाम धर्म का जो भाईचारा है उसको, मतलब वो वाला क्वेश्चन उसको बेस बना के जिस तरीके से वो अपने आप को इंगेज करता है मिडिल ईस्ट में, ठीक है ना, उसकी वजह से इंडिया के लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती, बहुत ज़्यादा जटिल हो जाती, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, राइट. दिस वॉज फर्दर मडीड बाय कांग्रेस क्लेम फॉर द मुस्लिम वोट एट होम. अब क्या है, फर्दर मडीड मतलब और ज़्यादा उलझ जाता है ये क्वेश्चन कि जब इंडिया की जो कांग्रेस पार्टी है वो मुस्लिम वोट को क्लेम करती है, तो इस वजह से वो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहती जिससे मुस्लिम्स के खिलाफ हो जाए. तो यहाँ पे एक रीजनल पॉलिटिक्स चल रही है, राइट. If Congress's reaction to development in the Middle East continues to be shaped by the religious question, मतलब अगर वो मुस्लिम वोटर्स को ही टारगेट करके नहीं बोलेगी मिडिल ईस्ट के क्वेश्चंस पे कुछ, many on the Hindu right too tend to view the region through the prism of the faith. तो फिर बहुत सारे जो हिंदू राइट हैं, ठीक है ना, जो राइटिस्ट हिंदूज हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फिर देखेंगे कि भाई हम भी फेथ के हिसाब से देखें कि धार्मिक उन्माद को हम भी मतलब एक तरीके से अपने उसमें लें, मतलब अकाउंट में लें, कंसीडर करें. सो शेयर्ड रिलीजियस आइडेंटिटी विद द इजराइल ईस्ट is a shared religious identity with the Middle East also dominates the political discourse in Pakistan. अब क्या है, पाकिस्तान में भी जो एक शेयर्ड रिलीजियस आइडेंटिटी, वो भी इस्लामिक है, हम भी इस्लामिक है, तो मिडिल ईस्ट में जो भी इस्लामिक जो भी कंट्रीज हैं उसके साथ में पाकिस्तान का भी डिप्लोमेटिक जो भी एक तरीके से डिस्कोर्स था वो डोमिनेट करता है. The region's recent history shows how nationalism, ethnicity, tribalism and sectarianism continues to trump presumed Islamic solidarity. अब वहाँ पे नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, एथनिसिटी, ट्राइबलिज्म और सेक्टेरियनिज्म, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जीतती हुई नजर आ रही हैं इस्लामिक सॉलिडारिटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना. बेसिकली रिलीजियस के बेस्ड पे काम वहाँ पे चल रहा है, जो कि ठीक नहीं है. If the pragmatic pursuit of common interest with the Arab world has produced many gains for New Delhi in the last few years, the framework of religious kinship has yielded little dividend for Pakistan. तो ये बताया जा रहा है कि जो एक तरीके से इंटरेस्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स की जा रही है, इंटरेस्ट बेस्ड जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जा रहा है अरब वर्ल्ड्स के साथ न्यू दिल्ली का, उसने ज़्यादा तरीके से फ़ायदा हुआ है इंडिया को, बजाय कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक धार्मिक जो मतलब अपना मतलब जुड़ाव बताया है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को कोई खास रिजल्ट नहीं मिला है. So as the current tragedy propels the politics of the Middle East into a new and dangerous moment, one thing is certain, the region demands greater Indian contribution to its stability and prosperity. तो अभी की जो स्थिति जो अटैक हुआ उसकी वजह से इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है, ग्रेटर इंडियन कंट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आ सके और प्रॉस्पेरिटी हो सके, ठीक है. द इंडियन पॉलिटिकल क्लास इन टर्न मस्ट शेड इट्स शेल्फ
referential discourses without respect for structural trends in the Middle East and build a new national consensus on engaging there. इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी और जो एनडीए है इन सभी लोग का स्टैंड क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, अपने सेल्फ रिफ्रेशर जो उनके खुद के जो सोचे हुए जो डिस्कोर्सेज उनको हटा करके, ठीक है, जो मिडिल ईस्ट है उसमें एक न्यू तरीके से फ्रेश रिफ्रेश्ड काइंड ऑफ व्यू के साथ आना चाहिए, राइट? सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, शेयरिंग इट अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.